اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ آج میں مفتی عبدالشکور رحمۃ اللہ علیہ کے گھر پہ حاضر ہوا ہوں، اور آنے کا مقصد تعزیت کرنا اور دعا کرنا، یہاں پر ان کے بچے سے ملاقات کرنی اور ان کے بھائیوں کو تعزیت کرنی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مفتی عبدالشکور صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں نے جو مفتی عبدالشکور صاحب پچھلے 1 سال سوا سال سے میرے ساتھ تھے کیبنٹ کے اندر، اور انتہائی نیک اور اچھے انسان تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہر شخص ان کی تعریف کرتا ہے۔ اور میں نے یہی دیکھا کہ انہوں نے اپنی بڑی سادگی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، اور اس سادگی کے حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ مفتی عبدالشکور صاحب نے جو آج ایک فیڈرل منسٹر کی حیثیت سے ٹائم گزارا، لیکن آج بھی ان کے بچے جو ہیں وہ ایک عام سے گھر کے اندر جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی اگزامپل مفتی صاحب نے اپنے پیچھے چھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور میرے بڑے پرانے ساتھی تھے، دوست تھے، بہت زیادہ اس چیز کا دکھ بھی ہے اور غم بھی ہے، اور ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ یہ جو بچہ میرے ساتھ کھڑا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے مستقبل کو اچھا کرے۔ اور میں بھی آتے ہوئے وہ مسجد بھی دیکھ کر آیا ہوں جس مسجد میں ہمارے مفتی عبدالشکور صاحب امامت کرتے تھے، اور چھوٹی سی ایک مسجد ہے، چھوٹا سا یہ اجرا ہے، اور یہاں پر وہ اپنی ایک زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات کو بلند کرے۔ بہت کم عمر کے اندر وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ میں ذاتی طور پہ تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں ان کے لیے کیا کر سکتا ہوں، ان کے بچوں کے لیے، لیکن میری خواہش ہوگی کہ یہ بچہ جو ہے اس کو اور ان کو اور ان کے جو بیوہ ہیں ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور مجھے بتایا گیا کہ وہ ابھی جو رہائش ہے وہ بھی اس مسجد کی طرف سے دی ہوئی جگہ ہے جہاں پر مسجد کی طرف وقف ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میری خواہش ہوگی کہ اسی بچے کے نام پر اس کو یہاں پر کوئی جگہ خرید کے دی جائے، اور اس کے اندر میں 20 لاکھ روپے تک انشاءاللہ تعالی میں ان کو کروں گا، لیکن وہ اسی بچے کے نام پر یا اس کی والدہ کے نام پر جو ہے وہ جگہ ہو، تاکہ یہ لوگ اپنی آگے کی زندگی جو ہے وہ اچھی طریقے کے ساتھ عزت احترام کے ساتھ گزار سکیں۔ اور باقی اللہ تعالیٰ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر مشکل نہ آئے، اور بہت چھوٹی سی عمر میں اس معاملات کے اندر آیا ہے، ہو گیا ہے، لیکن ہمارے پاکستان میں اللہ تعالیٰ بہتری کرے، دل مضبوط ہے، اور بڑی بڑی مشکل کو فیس کیا ہے۔ اور ہمارے بہت سارے احباب ہیں جن کو میں نے دیکھا ہے کہ بہت کم عمری کے اندر انہوں نے جو ہے ان کے والدین والد ان کے چھوڑ کے چلے گئے، تو اس کے باوجود انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ بڑا انہوں نے جو ہے ترقی کی ہے۔ انشاءاللہ یہ بچہ بھی ترقی کرے گا، ایک نیک انسان کا بچہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں اس پہ نازل ہوں گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے مجھے اس بارے میں خصوصی ہدایات کی ہیں، جس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ کنسرن ہے ان کے خاندان کے ساتھ،
इनके बच्चों के साथ। और जो मैंने अभी ऐलान किया उस हवाले से भी मौलाना साहब से मेरी बातचीत हुई, और मौलाना साहब की ख्वाहिश थी कि मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब की फैमिली जो है वो एक उनका घर का ठिकाना, उनका रहने की जगह का इंतज़ाम हो जाए। तो उसके लिए मैं इंशाअल्लाह ताला, हमारे इंतहाई मोहतरम साथी हैं अताउल्ला दरवेश साहब, इनकी सरबराही में हम एक कमेटी बना देंगे, और इंशाअल्लाह ताला उसी तरीके से फिर ये जो रकम है वो रकम में से कुछ रकम जो चाहिए वो रकम 20 लाख रुपए मैं अताउल्ला दरवेश साहब के हवाले अताउल्ला दरवेश साहब के हवाले करूँगा, ताकि वो इसका इंतज़ाम करें। और उसमें कमेटी के जो मेंबरान हैं, उन कमेटी के मेंबरान के हवाले से वो जो भी मौलाना साहब फैसला करेंगे उस हिसाब से वो फैसला करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला वो रकम भी मैं सबके सामने इंशाअल्लाह ताला इनके हवाले कर दूंगा, ताकि मामला जो है हमारा आज की तारीख़ में, ये नहीं कि ऐलान किया और चले गए। ये बच्चा हमारे लिए बहुत मोहतरम है, मासूम सा बच्चा है, और हमें, और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये को बताने के लिए है, ये सिर्फ इसलिए है कि हर चीज़ शीशे की तरह साफ रहे और किसी को इसमें कोई एम्बिग्युइटी न रहे। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मैं अभी जो है वो मुझे मंगवा दें, मैं अल्लाह ताला वो भी अभी हवाले करता हूँ इंशाल्लाह ताला। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तलहा साहब, कुछ हमारी ख्वाहिश होगी कि ये जो आपकी नई जिम्मेदारियाँ हैं, हज इंतज़ामात, इस हवाले से भी आप कुछ फरमाएं। लेकिन मुफ्ती साहब का जो हादसा हुआ है, जो मुलजमान गिरफ्तार है, वो केस कहाँ तक पहुँचा, उसमें क्या पेशरफ्त हुई है, उस हवाले से ज़रा बताएंगे। क्योंकि जो यहाँ उनके मुतक़िदीन हैं, उनके मुतालिकीन हैं, कुछ रूमर्स भी हैं उस हवाले से कि आया ये कोई साजिश थी या कोई हादसा था। तो इसकी अगर वजाहत हो जाए तो बहुत अच्छा। इस वाले से जहाँ तक ताल्लुक़ है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान का जो कानून है, उस कानून के अंदर बहुत सारी गुंजाइशें होती हैं। अब उसका फ़ायदा उठाते हुए जो लोग जिन्होंने ये बद एहतियाती की है या कुछ और उसके अंदर मसाइल थे, उस वाले से इस वक्त तक मेरी मालूमात के मुताबिक जो है वो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, और हमारे मौलवी कुदरतुल्लाह साहब जो है उसको सारे को बहुत अच्छी तरीके से हैंडल भी कर रहे हैं। लेकिन परसुएंस जो है वो मज़ीद परसुएंस की ज़रूरत है। लेकिन मेरा ख्याल जहाँ तक है, चूँकि इस वक्त ये सब लोग यहाँ पर मसरूफ़ हैं, इस वजह से वो उसको तवज्जो नहीं दी जा सकी जो तवज्जो उसको देनी चाहिए। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हमारे जो ड्यूटी लगी है कुदरतुल्लाह साहब की, और साथ में उनकी कमेटी भी है, वो बड़ी जान फिशानी के साथ इसके पीछे लगी। क्या जमात क्या समझती है, हुकूमत क्या समझती है कि वाक़ई हादसा था या? देखिए, अभी तक जो हमारे सामने बातचीत आ रही है वो अभी तक क्लियर नहीं है, लेकिन जो अपरेंटली नज़र आ रहा है, वो जो हमें नज़र आ रहा है, वो तो अभी तक हादसे की सिचुएशन नज़र आ रही है। हज के हवाले से मौलाना साहब का कि मतलब उसके हफ्ते 2-3 दफ़ा वो खुद वहाँ पे गए थे, होटल वगैरह इंतजाम, तो फिर वो जो है वो हज के वो दिन शुरू हुए, हज जा रहे, आपकी भी अभी नई जिम्मेदारी है, इस हवाले से क्या इंतजाम है वो पूरा? जी, उसमें इस तरह है कि मैं जो आज यहाँ पर फ़ौरन मैं जनाजे में मेरी शिरकत हो गई थी। मैं मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ गया था जनाजे में, और मौलाना साहब के साथ ही जनाजे की नमाज भी अदा की थी वहाँ पर। लेकिन उसके फ़ौरन बाद मुझे सऊदी अरब इसलिए जाना पड़ा कि ये लोगों को कुछ थोड़ी सी गलतफहमी है, वो मैं थोड़ी सी दूर कर दूँ। बात यह है कि पिछले साल जो फॉरेन एक्सचेंज की पोजीशन थी, वो वाली पोजीशन आज नहीं है। आज फॉरेन एक्सचेंज की पोजीशन बहुत सख्त है, और सख्त होने की वजह से जो पैसे ट्रांसफ़र हो जाने चाहिए थे रमज़ान से पहले या रमज़ान के शुरू में, वो ईद के बाद तक ट्रांसफ़र नहीं हुए थे। जब मुझे ये जिम्मेदारी दी गई, तो चूँकि वहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र नहीं हुए थे, और मुफ्ती साहब जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा उसमें उन्होंने कंट्रीब्यूशन की कोशिश की, कुछ रकम पहुँचाई, लेकिन वो रकम जो है वो उस हद तक नहीं थी कि जिससे ये सारे मामलात जो है पूरे किए जा सकें। क्योंकि आपको मालूम है कि
गवर्नमेंट ने इस वक्त एक कंडीशन भी लगाई थी कि डॉलर स्कीम भी दी। उस डॉलर स्कीम के अंदर भी 44,000 लोगों को हमने इनवाइट किया था और उसके अंदर सिर्फ 7,000 के लगभग जो है लोगों ने अप्लाई किया। उन सबको कबूल कर लिया, लेकिन जो गैप आ गया उसकी वजह से कोई 35-36 हज़ार लोगों का वो फिर हमें अकोमोडेट करना पड़ा। 30-32 हज़ार जितने भी बकाया रह गए थे वो हमने फिर पाकिस्तानी स्कीम के अंदर उनको अकोमोडेट कर दिया था। तो बहरहाल चूँकि पैसे वहाँ पर नहीं पहुँच सके, उस पैसे के ना पहुँचने की वजह से जो गलती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, कि उसको चाहिए था कि वो रकम जो है वो वक्त के ऊपर वहाँ पे पहुँचाता। और बदकिस्मती से वहाँ पर डायरेक्टर और डायरेक्टर जनरल जो है वो भी उन्होंने भी जो चार्ज लिया है वो ईद के दिनों में चार्ज लिया है। वो उससे पहले वहाँ पे डायरेक्टर जनरल भी नहीं थे। फिर डायरेक्टर, ये भी गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न और बाकी अदारों का काम है कि वो वहाँ पे डिप्यूट करते हैं। लेकिन बहरहाल अब चूँकि वहाँ पे अपॉइंट हो चुके हैं और पैसा जो है, इनिशियल पैसा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से हम पहुँचा चुके हैं। उसके अंदर 12 मीटिंगें हुई हैं मेरी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ फ़ौरन वापस आने के बाद, और गवर्नर स्टेट बैंक के साथ मेरी कई मरतबा इसके ऊपर बातचीत हुई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे कुछ रकम जो है पहुँच गई, जिसकी वजह से हमने फिर फौरी तौर पे बिल्डिंग्स वगैरह काफ़ी हद तक हम ले चुके हैं। लेकिन अभी भी प्रोसेस जारी है और हम जल्दी बिल्डिंग्स वगैरह ले रहे हैं। बस आखिरी सवाल यह है कि जो आपका स्टेटमेंट आया था कि अब भी लोग दाखिला कर सकते हैं, इसमें है कोई? देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ होता है कि किसी का, जैसे अभी मैं रास्ते में आ रहा था मुझे इत्तला मिली कि किसी का बेटा जो है वो रह गया। तो इस तरह के जो केसेस हैं, या कोई बहरम है कि किसी एक ने दाखिल कर दिया लेकिन अब उसकी बीवी भी जाना चाहती है, तो उनके लिए हम उनको अकोमोडेट कर देंगे। और उसके अलावा भी मैं ये समझता हूँ कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बहुत एमरजेंसी बुनियादों का तो हम अकोमोडेट करेंगे। हमारी ख्वाहिश है कि हमारे लोग जो हैं वो जाएं और अपना फरीज़ा अंजाम अदा करें। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि अभी एक बात बहुत ज़्यादा आ रही है कि पिछले साल हज जो है वो 8.5 लाख का था, 11,75,000 का है। तो ये जहन में रखें कि हमने जितनी भी अमाउंट है, जैसे मैंने शुरू में कहा, डॉलर की सूरत में हमें बाहर भेजनी पड़ती है। पिछले साल जो हज हुआ है वो $5,000 में हुआ है। अब जो हज के पैसे लिए गए हैं वो तकरीबन 4,300 या 500 के लगभग बनेंगे। तो उस वक्त डॉलर का रेट था 170-75 रुपये, 80 रुपये। इस वक्त डॉलर का रेट है 285-90 रुपये। तो हमारे पाक रुपये की डिप्रिसिएशन हुई है, जिसकी वजह से ये रकम ज़्यादा लग रही है। लेकिन बहरहाल फिर भी हमारी ख्वाहिश है कि हम किसी तरीके से अपने हाजियों को अकोमोडेट करें। लेकिन इस दफ़ा हाजियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा कि पिछले साल सऊदी अरब ने जो पूरी दुनिया से बुलाए थे वो 8.5 लाख हाजी थे, और इस वक्त जो है फुल फोर्स का हज हो रहा है। लिहाजा इस 2023 के हज का मुवाजना जो है 2019 के साथ हो सकता है। और पिछले साल जो है चूँकि 40% और 50% पे हज हुआ है। हमारी जो गवर्नमेंट स्कीम के तहत लोग गए थे वो 34,000 थे, और प्राइवेट जो लोगों का हज हुआ था वो 45-46 हज़ार था। इस दफ़ा जो है तकरीबन हमारे कोई 80-85 हज़ार गवर्नमेंट के खाते से जा रहे हैं, 80-81 हज़ार, और बाकी कोई हमने तकरीबन 88-90 हज़ार, 89,000 के लगभग हमने प्राइवेट सेक्टर को दिया है। तो ये लगभग जो लोग हैं वो 2.25 लाख जा रहा है पाकिस्तान से। जो हमने कोटा में मिला था 179 का, 1,79,210 का। तो उस वक़्त में और अब में बहुत फ़र्क है। तो मैं इस मौके से फ़ायदा उठा के सिर्फ ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि मुश्किलात होंगी, उसके लिए मेंटली तौर पे प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं उनका जहन साजी कर रहा हूँ कि वो ये ना समझें कि वहाँ पे मुश्किलात नहीं है, बड़ी आसानी होगी। नहीं, मुश्किलात होंगी। उन मुश्किलात को हम कितना कम कर सकते हैं, उनको अकोमोडेट कितना कर सकते हैं, वो इंशाअल्लाह ताला जैसे जमात ने मुझे ज़िम्मेदारी लगाई है, जैसे मौलाना साहब मेरी रहनुमाई कर रहे हैं, हम इंशाअल्लाह उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। हमारी पूरी जमात इसके अंदर जो है
इसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन डालेगी और लोगों की मदद करेगी, ताकि लोग जो है उनका जो हज है उसमें आसानियाँ जितनी हम ला सकें ले आए। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आसानियाँ जो पहले उनको मिल गई, वो आसानियाँ इस दफ़ा जो है मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आसानी मिल सकेगी। और जहाँ तक ताल्लुक है, नेशनल असम्बली ने पिछले साल नेशनल असम्बली ने बाकायदा इसकी हियरिंग की थी कि भाई कुछ लोग जो है वो फ्री हज किया है, और उसके ऊपर बाकायदा एक सब कमेटी बनी थी जिसकी प्रोसीडिंग अभी तक चल रही है। नेशनल असम्बली और उस सब कमेटी और मेन कमेटी की डायरेक्शन के ऊपर हम अब ये समझते हैं कि किसी किस्म का कोई शख्स, चाहे उसका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से हो, चाहे हमारे ताल्लुकदारों में से हो, वो मुफ्त हज जो है वो नहीं हो सकेगा। हाँ, जहाँ तक ताल्लुक है, मैंने नेशनल असम्बली में भी इस बारे में तकरीर की है कि मेरे अपने ज़ाती ताल्लुकात हैं, मुझ पे बहुत सारे लोगों के, मेरे अपने कुलीग हैं, सेनेटर्स हैं, MNAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके मेरे साथ उनका एक एहसान का सलूक है। हमें भी किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, हम उनसे मांगते हैं, अगर उनको मेरी ज़रूरत होती है तो वो मेरा पर्सनल मामला है, और पर्सनल मामले के अंदर जो मैं उनकी खिदमत कर सकूँगा मैं ज़रूर करूँगा, ऐसी बात नहीं। शुक्रिया जी, शुक्रिया सर। जी मुदस्सिर भाई बोले।